مگر ہم آج خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہلاتے ہیں، نبی کا مستانہ کہلاتے ہیں۔ نماز ہوتی رہتی ہے، چوک چوراہے پہ گھومتے رہتے ہیں، بعد نماز ہوتی رہتی ہے، ہم ادھر ادھر دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم دوسروں کی ماں بہنوں کی برائیاں اور ماں بہنوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز کی شان مبارکہ تو یہ تھی کہ خواجہ غریب نواز کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں فرمائے۔ خواجہ غریب نواز جب کھیلتے بھی تھے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے کھیلتے تھے، جس طرح سے عام بچہ کھیلتے ہیں، جس طرح سے عام بچے الفاظات کلمات کو نکالتے ہیں، کبھی بھی خواجہ غریب نواز نے اپنی زبان مبارک سے نہ نکالی۔ حضرات محترم، آج ہم خواجہ غریب نواز کے دیوانے کہلاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو اور ہم کو، سبوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غوث اعظم کا دیوانہ کسے کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ کسے کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے چہتے کسے کہتے ہیں۔ ارے چاہنے والا تو وہ تھا، بلال حبشی تھا، وہ مر مٹنا تو گوارا کیا مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کو گوارا نہ کیا۔ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا ہونا تو گوارا کیا مگر کبھی بھی جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا، کبھی بھی کسی کے دل پہ چوٹ پہنچانا گوارا نہ کیا، کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانا گوارا نہ کیا، کبھی بھی جھوٹ اور غیبت کرنا گوارا نہ کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا تھا زنا کا، اس کے باوجود بھی خواجہ قطب الدین بختیار نے اپنی زبان پہ تالے لگا کر کے رکھے، اپنے زبان پہ خاموش کر کے رکھے، اس وجہ سے کہ اگر ہم سچے ہیں، ہم اچھے ہیں تو کائنات اچھی ہے، اگر ہم برے ہوں گے تو کائنات بری ہوگی۔ اے عورت، تو میرے اوپر الزام لگاتی ہے، میں اگر کچھ کہوں گا، میں صفائی دوں گا تو تم سوچو گے کہ ہاں یہ اپنی صفائی بھی تو پیش کرے گا، لہٰذا میں کوئی صفائی دینے والا نہیں ہوں، یہ تو میرے پیر و مرشد ہی جواب دیں گے، فیصلہ دیں گے۔ حضرات محترم، پیر و مرشد کو آپ نے پکارا، پیر و مرشد حاضر ہو گئے، پیر و مرشد نے آپ کو جواب دیا اور اس عورت کو بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور اس عورت کے ساتھ دینے والے تمام ظالموں کو جو شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرتا تھا، نام نہاد مسلمان تھا، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، سبوں کو رسوا اور ذلیل ہو کر کے انہیں پھانسی کی سزا سننی پڑی۔ حضرات محترم، آج ہم مسلمان ہیں، اگر ہم آج مسلمان ہیں تو مسلمان اسے کہتے ہیں اگر ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، غوث کی سیرت کو اپنانی پڑے گی، اگر خواجہ پاک سے محبت کرتے ہیں ان کی سیرت کو اپنانی پڑے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غوث اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی نماز چھوڑی؟ کیا خواجہ پاک نے کبھی اپنی زندگی میں نماز چھوڑی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ خواجہ پاک کی شان برکت تو یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف صرف 3 سال کی ہے۔ 3 سال کے بچوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ ہم جانتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد ہوتا کیا ہے، جتنے ننھے منھے بچے محلے میں گھومتے ہیں سب کو لے کر کے آتے ہیں، سبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلا کر کے جب بچے سب مسکرانے لگتے ہیں سبوں کو پھر دروازے پر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، یعنی کہ بچوں کو کھانا کھلا کر کے آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی حد یہیں تک نہیں، بچہ خواجہ غریب نواز کا زمانہ طفلی ہے، یعنی کہ 3 سال کی عمر شریف سے بھی کم ہے، اور ان کا معاملہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کوئی آتے اور آنے کے بعد ہوتا کیا کہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بچہ آیا ہے، بچے کی ماں ساتھ میں ہے مگر یہ بچہ رو رہا ہے، فوراً آپ اپنے والدہ محترمہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ اے میری اماں جان، اس بچے کو آپ دودھ پلا دیجئے۔ حضرات محترم، وہ ماں تھی، وہ بیٹا تھا کہ بیٹا کا حکم پاتے ہی، بیٹا کی مرضی سنتے ہی، بیٹا کے اشارے پاتے ہی وہ ماں فوراً اس ایک اجنبی بچے کو گود میں لے لیتی ہیں، لینے کے بعد اس بچے کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلا کر کے جیسے ہی وہ بچہ خوش ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دودھ پیتے بچوں کے بھی ماں کے سینے سے دودھ کو چھین لیتے ہیں، کبھی جادو ٹونا کے دوبارہ تو کبھی ان کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے کے دوبارہ، کبھی ہم اپنوں کو ہی تباہ اور برباد کرنے کے لیے سازشیں رچتے رہتے ہیں، کبھی مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں،
कभी तावीज़ात करने वाले, जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं और मकसद यही होता है मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर हो रहा है, उनको तबाह बर्बाद करना है, मेरा भाई बड़ा अमीर हो रहा है, इन्हें तबाह बर्बाद करना है, वो बहुत पैसे वाला हो गया है, उन्हें तबाह बर्बाद करना है। हज़रत मोहतरम क्या ख्वाजा पाक ने हमें यही दर्स दिया। आज हम ख्वाजा पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, क्या हमें ख्वाजा पाक ने यही दर्स दिया है? कभी नहीं। ऐसा दर्स ख्वाजा पाक ने कभी नहीं दिया, बल्कि ख्वाजा पाक ने तो हमें ये दर्स दिया, अगर तुम्हारे साथ कोई गलती कर दे तो उनकी गलतियों को माफ कर दो। अगर कोई तुम्हारा दिल को दुखाए तुम उनके दिल को मत दुखाओ, बल्कि उनके सामने में मुस्कुरा दो, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि हम उनको इतना तकलीफ पहुंचाए, इतनी तकलीफें दी, उसके बावजूद भी यह जो है हमारे सामने में मुस्कुरा रहा है, मोहब्बत से पेश आ रहा है, मोहब्बत से बातें कर रहा है। इससे होगा क्या कि उनके दिलों में और मोहब्बत आ जाएगी। हज़रत मोहतरम क्या हमने आज तक कभी इन बातों पर गौर फिक्र किया? अगर ऐसी बातें बताई जाए तो बाज़ आदमियों के ज़हन फिक्र में एक बात आती है कि हज़रत जो है इन्हीं बातों को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब सिर्फ एक हैं। ए मुसलमानों, आज आप खुद अपने आप को संभल जाओ, शरीयत मुस्तफ़ा को तख्तिए दिल पर उतार लो। कसम है रब्बे काबा की, एक आरिफ रजा नहीं, बल्कि अगर दुनिया में हजारों आरिफ रजा होगा, आपको कोई भी बार बार नमाज के बारे में नहीं कहेगा, रोजा के बारे में नहीं कहेगा, गुनाहों से बचने के बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि जब आप गुनहगार होंगे ही नहीं तो गुनहगार कहेगा कैसे? जब आप खताकार होंगे नहीं तो खताकार कहेगा कैसे? जब आप बदकार होंगे नहीं आपको बदकार कहेगा कैसे? तो सारे सवालात का जवाब एक है, मस्जिद में आ जाओ, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, रब्बे काबा की बारगाह मुकद्दसा में रो रो करके गिर गिरा करके ये दुआ कर लो, मालिक परवरदिगार, मैंने जो कुछ भी गुनाह किए हैं, मौला मैंने जो कुछ भी खता किए हैं, तेरे घर में आकर के मैं दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, आइंदा गुनाह से बचने का वादा करता हूँ मौला, तो मेरी खताओं को माफ फरमा दे। हकीकत तो ये है, अगर आपने आज वाकई में दिल से तौबा कर लिया, हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आएंगी। अगर आपने दिल से तौबा कर लिया, हमारे मदरसे वीरान नजर नहीं आएंगे। अगर आपने दिल से तौबा कर लिया अपनी गलतियों से, उलमाए कराम की तौहीन करते हुए आप नजर नहीं आएंगे। अगर आप दिल से तौबा कर लिए तो एक दूसरों की बगावत करते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। जब ये बात कही जाए तो मौलाना साहब बगावत करते हैं, बगावत करने पर मजबूर किसने किया? और मौलाना साहब कभी बगावत नहीं करते, बल्कि मौलाना साहब तो हक कह देते हैं। और यही हक बात कौम को जब कड़वी लगने लगती है तो ये उल्टा पलटवार उलमाए कराम से बगावत करके बदला लेते हैं। हज़रत मोहतरम उलमाए कराम से बगावत करके कोई फायदा नहीं होगा, बर्बादी के अलावा आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। अगर आप वाकई में इज्जत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, अगर आप जिंदगी और बंदगी दोनों चाहते हैं, इज्जत के साथ चाहते हैं, तो दो बातों को अपना लीजिए। उलमाए कराम की इज्जत करना जान जाइए, फरमाने मुस्तफा पर अमल करना सीख जाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रुसवा कर सके। आज आपकी औलाद आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान हो चुकी है। जब आप रब अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान हो जाएं, जिसने कायनात को पैदा फरमाया है, अगर आपने एक बच्चा को जन्म दिया है, अगर वो आपका नाफरमान बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है? जब आप अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत करेंगे, जिसने कायनात को पैदा फरमाया, अगर आपकी औलाद आपकी एक नाफरमानी कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी नाफरमानी ना करे, तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा जवाब है, आसान सा रास्ता है कि आप अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करना बंद कर दीजिए। आप नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजा रखना शुरू कर दीजिए,
ज़कात ईमानदारी के साथ जितना निकलना चाहिए आपके घर से उतना निकालना शुरू कर दीजिए। आप पैसे वाले हैं, अल्लाह ताला ने माल दिया है, दौलत दिया है, आप साहिब निसाब हैं, तो आप हज करने के लिए चले जाइए। गरीबों का ख्याल रखिए, यतीमों का सर का साया बन जाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रुस्वा कर सके, आपकी औलाद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो आपकी नाफरमानियां कर सके। हमारी शरीयत क्या बताती है? यही तो बताती है ना। क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया? हम भी मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, अपनी औलाद को भी मोबाइल दे देते हैं। हम भी टीवी पे बैठ जाते हैं, अपनी औलाद को गोद में लेकर के रखते हैं और नंगी नंगी तस्वीरें दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं। जिन हरामखोरों को पेशाब करने का सलीका नहीं आता उसे अपना हीरो मानते हैं। जिस नालायकों को अपने आप को पाक होने का तरीका मालूम नहीं उसको हम अपना हीरो तस्लीम करते हैं। अरे हमारा हीरो तो वो है जो सारी कायनात में अफजल आला है, जिसे रब्बे काबा ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हमारे आइडियल तो वो है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अखलाक़ हसना अगर हमें सीखने का तरीका बताया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मोहम्मद अरबी से सीखो। सलमान खान से मत सीखो, आमिर खान से मत सीखो, या दिगर मुंबई में रहने वाले हीरो से मत सीखो, बल्कि सीखना है तो मदीने के ताजदार से सीखो। अगर सीखना है ख्वाजा के हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा से सीखो। अगर सीखना है तो इमामुल औलिया से सीखो। हज़रात मोहतरम, शायद कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो शायद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अगर दी है, दीन की बातें सोचने की अक्ल अता फरमाई है, सिर्फ फकत दीन की बातें, दुनिया की बातें तो सोचने के लिए सबों के अंदर अकल है। पैसे कैसे कमाने हैं सबको मालूम है, बिल्डिंगें कैसे बनानी है सबको मालूम है, अपनी बेटी के शादी में, बेटा के शादी में फजूल खर्ची कैसे करने हैं, नाच गाने कैसे करने हैं, कैसे नचाने हैं, कैसे नचनियों को बुलाने हैं, सबको मालूम है। मगर नमाज कैसे पढ़ने हैं सबको मालूम नहीं, रोज़ा कैसे रखना है सबको मालूम नहीं, ज़कात किस तरह से अदा करने हैं सबको मालूम नहीं, हज कब हमारे ऊपर फर्ज है सबको मालूम नहीं। लिहाजा हमें ज़रूरत है इन बातों पे अमल करने की। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया में भी आप कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। लिहाजा हज़रात मोहतरम, वक्त काफ़ी हो चुका है और हमारा मकसद किसी को ताना देना नहीं होता है, हमारा मकसद किसी को धमकी देना नहीं होता है, हमारा मकसद किसी को ज़लील और रुस्वा करना नहीं होता है, बल्कि हमारा मकसद इस्लाह मुआशरा होता है। क्योंकि बयान हर कोई करते हैं, वाक़यात सब कोई बयान करते हैं, मगर कौम के अंदर जो बात और जो खामी है, गलतियां हैं, खुल करके कौम को बताने वाले आजकल उलमा के अंदर भी हिम्मत नहीं रही। अगर हर उलमा अपने दिल में ये ठान लें कि अपनी कौम की इस्लाह खुल करके करनी है, ये बेनमाजी है बेनमाजी कहना है, ये जानी है जानी कहना है, तो हमारी कौम के अंदर से गलत फहमियाँ बुराइयाँ सारी के सारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौला मुझे बोलने में, आप सबको सुनने में किसी भी किस्म की कोई गलतियाँ हुई हो तो अपने फज़ल करम से माफ़ अता फरमा। इस बयान में सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मेरे बाद मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, एक बेहतरीन वलवला अंगेज़ खिताब आपने समाअत फरमाया। हज़रत कौम की इस्लाह फरमा रहे थे और आप हजरात तक शरीयत मुतहरा के अहकामात पहुँचा रहे थे। आपने खूब अच्छे अंदाज के अंदर हजरत का बयान सुना और भी सुनते हैं। अब आइए बिला ताख़ीर और बिला तमसील हम अपने मेहमान खुसूसी जो बाज़नी की सरज़मीन तशरीफ़ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज